Hello everyone. So this lecture is for class 6 and we have already studied the chapter Mr. Toad's Adventure. This is your continuation of the same lecture, Mr. Toad's Adventure. Now I remove page number of your textbook, page number 4 of your textbook, and we should, before starting, we should just take a quick review of the chapter. The author of the chapter is Kenneth Graham in 1859 to 1932. This is the date of birth and this is the date of death. Published from book The Wind in the Willows. So this chapter is taken from the book The Wind in the Willows. Where was Mr. Toad sitting? Where was Mr. Toad sitting? He was sitting in the inn restaurant. Means Mr. Toad कहाँ बैठे थे? Mr. Toad was sitting in the restaurant. वो एक restaurant में बैठे थे. And according to that, he heard the sound of the beautiful car. जब जैसे ही उन्होंने कार का हॉर्न सुना, he was very impressed with the car and he just want to see how the car looks like, meaning the lord of the lone train, king of the street. Meaning of lord of the lone train. लॉर्ड ऑफ द लोन ट्रेल का मतलब क्या है कि अपने आप को क्या समझना कि पूरे एरिया का किंग, पूरे स्ट्रीट का क्या समझते थे मिस्टर ही वॉज द किंग. व्हाई डिड मिस्टर टोड वाज चेस्ड बाय द कॉप्स? कॉप्स ने क्यों मिस्टर टोड को चेस किया? why they were behind the Mr. Toad? Because as he was driving the car very rashly and that too without license. Cops means policeman. Policeman उनके पीछे क्यों लग गए थे? क्योंकि वो बहुत rashly drive कर रहे थे कार और वो भी without license, मतलब बिना लाइसेंस के, which is called illegal in the by the name of the government. हम गवर्नमेंट के थ्रू उसको क्या बोलते हैं? इलीगल, कि बिना लाइसेंस के हम ड्राइव नहीं कर सकते. Okay, next, okay, remove page number 4 of your textbook and let's start the chapter. An excellent suggestion. Okay, the page number 4 and this is your chapter. An excellent suggestion, said the chairman approvingly. Prisoner, it's going to be 20 years for you this time. And mind, if you appear before us again upon any charges whatever, we shall have to deal with you very seriously. So what did the chairperson say कि ये क्या है? हाँ, मतलब ये एक प्रिजनर है और इसको कितने साल की सज़ा होनी चाहिए? 20 years की. और मिस्टर टोड से ये कहा जाता, अगर 20 years की तुमको प्रिजन मिल गई और उसके बाद भी तुम हमें दिखाई दिए कुछ ऐसा गलत काम करते, इलीगल वर्क करते, हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? स्ट्रिक्ट एक्शंस देंगे, सीरियस एक्शंस देंगे. Then the brutal minions of the law. What do you mean by minions of the law? Means policemen. Then the brutal minions of the law fell upon the hapless Mr. Toad. So what happened? Policeman मिस्टर टोड के साथ क्या करने लगे? एकदम हार्श, अनफॉर्चुनेट. हैपलेस मतलब अनफॉर्चुनेट. ओके, द मीनिंग्स आर गिवन इन द बॉक्स. ये बॉक्स में मीनिंग्स दिया है. अगर आपको कुछ नहीं समझता तो यू कैन जस्ट गो ऑन. हैपलेस मतलब अनफॉर्चुनेट, मतलब कि ऐसा किस्मत को जो कोसते उसको बोलते हैं हम अनफॉर्चुनेट. अरे बैड बैड लक जिसे हम कहते हैं, इट्स नोन एज अनफॉर्चुनेट. सो व्हाट हैपन, जो मिनियंस ऑफ द लॉ थे, मतलब पुलिसमैन थे, वो मिस्टर टोड की लक पे बहुत ज़्यादा वो कर, दे लोडेड हिम विथ चेन्स एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द कोर्ट हाउस. उन्होंने क्या किया? मिस्टर टोड को पुलिसमैन ने चेन्स में लोड की, मीन्स उनको उनके हाथ और पैर पे चेन्स बांध दिए और उनको कोर्ट में से ड्रैग करते, मतलब खींचते हुए कोर्ट में से लेके गए. मिस्टर टोड श्रिंकन एंड प्रोटेस्टेड across the marketplace where the spectators attacked him with carrots and popular catch words. So what happened? उनको मार्केट के पास लेके गए. जब मार्केट के पास लेके गए तो वहाँ के लोग क्या कर रहे थे? उन पर कैरोट्स फेंक रहे थे और उनको बैड मतलब ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे कि जो
इंसल्ट कर रहे थे, मीन्स बैड वर्ड्स यूज कर रहे थे उनके लिए. ही पास्ड अंडर द फ्लोइंग आर्कवेज ऑफ द ग्रिम ओल्ड कैसल. ही पास्ड guard rooms full of grinning soldiers off duty who coughed in a horrid, sarcastic way at him. He passed men at arms in casket of steel, darting threatening looks at him. सो देन वो उसके बाद मतलब वो मार्केट के बाद से वो एक कैसल, मतलब कैसल के थ्रू, वो एक पुराने कैसल के थ्रू उनको पास किया गया. ग्रीन मीन्स बहुत अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट, मतलब आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला, अनहैप्पी. वहाँ पे आसपास वो जहाँ पर भी देख रहे थे वो क्या, मिस्टर टोड वॉज फीलिंग वेरी अनहैप्पी, ही वॉज वेरी हॉरीफाइड, मतलब वो आसपास सोल्जर्स को देख के हॉरीफाइड हो रहे थे. ही वॉज गेटिंग वेरी बैड लुक्स, लोग उनके तरफ एकदम बैड तरीके से देख रहे थे, बिकॉज ही हैज़ डन the thing which is not good, and all of them were looking at him in a threatening, मतलब सब ऐसे डरा रहे थे, ऐसे looks दे रहे थे. he he passed the thumbscrew room. At last they reached the door of the grimmest dungeon that lay in the heart of the innermost heap. So अब वो थम स्क्रू, मतलब उनका वो टाइम में जेलर्स का वो एरिया में, जेलर्स जब किसी को जेल में डालते थे उनको एकदम अंदर डीप जेल में डालते थे, ताकि उनको ना लाइट दिखाई दे, ना सनलाइट दिखाई दे, ना एयर, ना वाटर, कुछ भी नहीं. उनको एक ऐसी जगह डालते थे जहाँ पर उनको बिल्कुल मतलब पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट उनको बहुत डार्क प्लेस पे रखा जाता. तो इन द सेम वे मिस्टर टोड को भी ऐसी डार्क प्लेस पे रखा गया था, दैट ले इन द हार्ट ऑफ द इनर मोस्ट हिप. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो एकदम अंदर, एकदम एक छोटी सी जगह, और जहाँ पे कोई आ नहीं सकता, कोई जा भी नहीं सकता. देयर where an ancient galore set fingering a bunch of mighty keys. जहाँ पर एक एंशियंट गैलोर मीन्स जेलर, जो जिसके पास सेट ऑफ कीज रहता है, जिसके पास कीज रहता है वो गेट खोलने के लिए और उसके अंदर प्रिजनर्स को डालने के. और बोडिकिंस सेट द सर्ग्रेन ऑफ पुलिस, taking off his helmet and wiping his forehead. Wake up and take over from us this white toad. So what happened? उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेलर को बोले गेट अप. ऑड्स बुकिडिंग्स मीन्स एक विश रहता है, जैसे हमारे इंडिया में सोल्जर्स एक दूसरे को जय हिंद विश करते, उसी तरह वो पीरियड में ब्रिटिश लोग ऑड्स बुकिडिंग्स ऐसे बोल के एक दूसरे को विश करते रहे. फिर उन्होंने उसका खुद का हेलमेट निकाले और उन्होंने बोले ये वाइल्ड टोड को अपने अंदर, मतलब मॉरली बैड, मतलब बहुत गंदा बिहेवियर है टोड का, और इसको आपके जेल में बंद कर दो. अ क्रिमिनल ऑफ डीपेस्ट गिल्ट एंड मैचलेस आर्टफुलनेस एंड रिसोर्स. वॉच एंड वॉर्ड हिम विथ ऑल योर स्किल्स. मतलब उन्होंने जेलर को ये बोला, पुलिसमैन सेड टू द जेलर दैट कि ये जो पर्सन है मिस्टर टोड, ही इज़ वेरी मॉरली बैड, मतलब वो बहुत गंदा बिहेव करते लोगों के साथ. एंड उसने मतलब स्ट्रीट पर उनको पूरी हिस्ट्री बताई कि इन्होंने गाड़ी कैसे चलाई विदाउट लाइसेंस, इतनी रैश ड्राइविंग, मतलब हम लोग रोक रहे तो भी नहीं सुने. एंड ही वॉज गिविंग द बैड वर्ड्स टू द पुलिसमैन. इस पर एकदम स्ट्रिक्ट वॉच रखना है और कुछ भी हो जाए मिस्टर टोड के स्किल्स पर बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज ही इज़ अ थीफ. क्योंकि उन्होंने क्या चोरी किया था, कार चोरी किया, एंड ही इज़ अ वेरी बैड पर्सन. ओके, सो नेक्स्ट, जेलर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ मिस्टर टोड वेरी वेल. आपको मिस्टर टोड का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है. नेक्स्ट, पेज नंबर 5. द गैलोर नॉडेड ग्रीमिंगली, लेइंग हिज withered hand on the shoulder of the miserable Mr. Toad.
The rusty गैलर ने क्या किया, मतलब जेलर ने बहुत एकदम अच्छे से अपना हेड नॉट किया, एकदम ग्रिप, एकदम एरोगेंट वे में, मतलब एकदम गुस्से से अपना सर हिलाया और मिस्टर टोड के शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा एंड बोला कि आई, मतलब एकदम ऐसा लुक दिया कि जैसे उसको वो बहुत हार्श पनिशमेंट देगा. The rusty keys creaked in the lock, the great door clanged behind them, and Mr. Toad was helplessly prisoner in the remotest dungeon of the best guarded keep to the shortest castle in all the length and breadth of merry England. So व्हाट हैपन, वो जेलर ने क्या किया, अपना जेलर ने लॉक खोला और मिस्टर टोड को उसके अंदर जोर से पुश किया एंड ही क्लोज द लॉक. और वो जगह एक ऐसी थी जहाँ पे अंडरग्राउंड प्रिजन था और वो कैसल के इतने दूर था कि कोई वो चीज़, मतलब कोई प्रिजनर्स को देख भी नहीं सकता था एंड कोई हेल्प भी नहीं कर सकता था. और सिर्फ वहाँ पे मिस्टर टोड वो क्या, मतलब उसमें बस बैठ के सिर्फ सोच सकते थे कि आगे क्या करना है करके. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द मिस्टर टोड्स एडवेंचर. हम यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करते हैं. नाउ वी विल गो विद द consolidations, means the question answers and the basic part of the chapter. So consolidates means A1, mark these sentences as true or false. आपको ये sentences true या false ऐसे mark करना है. Okay. So let me. So first one here, this one, Mr. Toad was startled by the sound of a truck. Means startled means shock, feeling of shock या एकदम sudden से shock लग जाने को हम क्या बोलेंगे, startled. Okay, sudden shock. So by the sound of truck. So it is false because Mr. Toad को किसकी sound ने shock किया था, sound of car. Okay. Mr. Toad did not want to steal the car. Mr. Toad को कार चोरी करनी थी क्या? Did not want to steal the car. Yes, he did not want to steal the car. उनको कार चोरी नहीं करनी थी, उनको बस वो कार की ड्राइव लेना था. Mr. Toad broke the traffic rules. Yes, he broke the traffic rules. True. Mr. Toad was let go because he was a wealthy merchant. मतलब मिस्टर टोड को छोड़ा गया क्योंकि वो बहुत अमीर थे. नो, false. मतलब मिस्टर टोड को पनिशमेंट मिली और वो क्या पनिशमेंट थी? He was having a 20 years of prison. Mr. Toad was helpless prisoner in a remote dungeon. Yes, remote dungeon में मिस्टर टोड बहुत helpless थे because कोई उनकी ना help कर सकता था, ना वो वहाँ से बाहर निकल सकते थे, and nor even he can enjoy the life. So next question number 2 is answer the following. What was Mr. Toad doing when he heard the sound of car? See, before starting the answer, you have to take your notebook. आपको आंसर को A1 भी आपकी नोटबुक में लिखना है, A2 भी. जैसे हम लोग मतलब आप लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों लिखेंगे. यू विल राइट द क्वेश्चन, सी इन योर टेक्स्ट बुक्स द क्वेश्चन. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पर क्वेश्चंस दिए गए, आप लोग वो क्वेश्चंस कॉपी करेंगे एंड आंसर्स आपको स्लाइड पर दिया. ओके, सो मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी रीड करूँगी एंड आंसर्स भी. सो लिसन इट केयरफुली, रिपीट आफ्टर मी एंड देन राइट. आपको सबसे पहले सुनना है एकदम ध्यान से, देन आपको मेरे पीछे उस वर्ड्स का रिपीटेशन करना है, प्रोनाउंस करना है, एंड देन यू विल राइट इन योर नोटबुक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. आंसर दिस क्वेश्चंस. What was Mr. Toad doing when he heard the sound of the car? What was the answer is Mr. Toad was having his luncheon in the coffee room of an inn when he heard the sound of the car. What was Mr. Toad doing? Mr. Toad was having his luncheon in the coffee room of an inn when he heard the sound of the car.
ओके, मिस्टर टूड क्या कर रहे थे जब उनको कार की आवाज़ आई? मिस्टर टूड अपना लंच ले रहे थे कॉफ़ी रूम में जब उनको कार की आवाज़ सुनाई दी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, the next question is second one. Describe Mr. Toad's adventure after he picked the car from the inn yard till he was caught. Second question में हमें क्या लिखना है, क्या बता, what question is asking, क्या पूछ रहा है वो हमसे कि हमें ये बताना है कि जब मिस्टर टोड ने क्या क्या एडवेंचर किए जब उन्होंने वो कार को पिक करे इन यार्ड से लेके, तो जब तक वो पकड़े नहीं गए तब तक. So the second answer is, see, this is your, you can see this red mark, yes. Okay. This is your answer 1 and this is your answer 2. This answer 3, answer 4 and answer 5. Okay. So the second answer, Mr. Toad pulled the car out of the inn yard and drove away in great speed. Mr. Toad ने क्या किया? उन्होंने इन यार्ड में से कार को निकाले, ड्रोव कर मीन्स चलाए, और वो भी बहुत स्पीड में. He was neither conscious that he had done something wrong nor aware of where he was heading. उनको ये भी नहीं पता था कि उन्होंने जो किए वो गलत है, और उनको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं. When he heard the police siren, he increased the speed further and tried to escape. मतलब जब उन्होंने पुलिस की सायरन सुने, वो मिस्टर टोड ने क्या किया, बहुत स्पीड और बढ़ा दी, और वो क्या करने लगे, वो सोचने लगे कि मैं यहाँ से एस्केप हो जाऊँगा. बट ही वॉज कॉट एट द नेक्स्ट टर्न ऑफ द रोड. मतलब अगले टर्न पे पुलिस मैन ने उनको क्या किया, पकड़ लिया. ही वॉज कॉट. नेक्स्ट, द थर्ड वन, how did Mr. Toad behave when he was caught by the traffic police? Mr. Toad ने कैसे behave करे जब उनको traffic police ने पकड़ ली? So answer third, Mr. Toad was arrogant and told the traffic police that he did not need any license. मिस्टर टोड क्या थे, बहुत एरोगेंट हो गए. एरोगेंट एकदम अपने आप को बहुत मतलब गुस्से में, हाँ मेरे को तुम क्यों पकड़ सकते हैं, एटीट्यूड बता रहे थे पुलिस को. और उसको बोले कि लाइसेंस की क्या ज़रूरत है, दैट ही डिड नॉट, मुझे लाइसेंस की क्या ज़रूरत है. ही ऑल्सो लाइड बाय सेइंग दैट he had only been trying to check the speed limit of the car. और वो क्या बोलते, अरे मैं थोड़ी ना फास्ट चला रहा था, मैं तो बस देख रहा था कि ये कार की स्पीड लिमिट कितनी है. तो वो पुलिस से झूठ भी बोलते, ऊपर से एटीट्यूड और एरोगेंस से बात करते, ऊपर से उनके पास क्या लाइसेंस भी नहीं. तो ये 3 फॉल्ट्स रहते हैं मिस्टर टोड के, जिसके वजह से वो कहाँ लैंड होते हैं, ही गेट्स लैंडेड इन द प्रिजन. Next, fourth one, who was Mr. Clerk? What was his opinion on the crime committed by Mr. Toad? Okay, who was Mr. Clerk? Okay, answer fourth one, Mr. Clerk was a member of the court of law. Mr. Clerk कौन था, वो एक कोर्ट का मेंबर था. He thought that Mr. Toad had committed 3 very serious crimes. मतलब उनको क्या लगा कि मिस्टर टोड ने एकदम 3 बड़े बड़े क्राइम्स कमिट करे. स्टीलिंग अ मोटर कार, ड्राइविंग डेंजरसली एंड चिकिंग द पुलिस. मतलब एक तो सबसे पहला क्राइम की कार चुराना, देन बहुत गंदा ड्राइव करना, डेंजरसली ड्राइव करना, और थर्ड है कि पुलिस को चिकिंग करना, मीन्स उनको चकमा देने की कोशिश करना या उनसे भाग जाने की कोशिश करना. He thought Mr. Toad should get 20 years of imprisonment for this crime. फिर उन्होंने क्या सोचा, क्लर्क ने, what did clerk thought कि मिस्टर टोड को 20 years तक imprisonment मिलना चाहिए, जेल मिलना चाहिए ऐसा क्राइम करने के लिए. Next, fifth one, describe the journey of Mr. Toad from the courthouse to the duck inn
where he was imprisoned. मतलब अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बताना है कि मिस्टर टोड को कोर्ट हाउस से लेके प्रिजन तक किस तरीके से लेके गए और उनके साथ क्या क्या हुआ. Okay, so answer fifth, Mr. Toad was put in chain and dragged through the marketplace where people attacked him with carrots. मिस्टर टोड को क्या करा गया कि उनको चेन में बांध के खींचा गया, ट्रैक किया गया मार्केट प्लेस में, और मार्केट प्लेस में जाने के बाद लोगों ने उनके ऊपर क्या फेंके, कैरोट्स. आफ्टर ही एंटर्ड द ओल्ड प्रिजन हाउस ही सॉ सोल्जर्स मेकिंग फन ऑफ हिम. मतलब जब वो प्रिजन में एंटर हुए तब सोल्जर्स उनका मजाक उड़ा रहे थे. एंड ऑल्सो लुकिंग एट हिम थ्रेटिंगली, और उनकी तरफ एकदम डरावनी मतलब एकदम ऐसा थ्रेट, एकदम डराने के पोस्चर में देख रहे थे. He went through the thumbscrew room and finally reached the remotest dungeon. Here he was handed over to a jailer who put him inside the cell. फिर उनको एकदम अंडरग्राउंड रिमोटेस्ट डंकिंग में तक लेके गए और उनको जेलर के हाथ में दे दिए, जो वो जेलर ने उनको सेल में पुट कर दिया, मीन्स ढकेल दिया. Okay, so these are the 5 question answers given in your textbook page number 5. ये 5 questions के आंसर्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे दिया है. आपको आप वीडियो पॉज करो और ये सारे आंसर्स विद क्वेश्चन लिख कर निकालें. ओके, नेक्स्ट इज पेज नंबर 6, learning interest, that is A4. Okay, A4, hyperbole examples. Okay, these are the examples of hyperbole. So what is an hyperbole? So here it's given in the page number textbook 6. Hyperbole is using exaggerated statements. Okay, let me zoom in. Okay, hyperbole is using exaggerated statements or ideas that are not meant to be taken literally. Okay, hyperbole मतलब ऐसे सेंटेंस जो होना पॉसिबल ही नहीं है, वो कभी हो ही नहीं सकते. हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ऐसी चीज़ बोलना जो कभी लाइफ में पॉसिबल, लाइक आई कैन फ्लाई, या फिर आई कैन ड्रिंक द वाटर ऑफ द ओशन, मतलब मैं पूरा ओशन का पानी पी सकता हूँ. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज हाइपरबोला. मीन्स ऐसी बात बोलना जिसका कोई मतलब कोई एम नहीं है, या फिर वो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है होना. इट्स काइंड ऑफ फेक, मतलब इट्स काइंड ऑफ, हम बोलते हैं इसको, वी कॉल इट इन नॉर्मल लैंग्वेज, हम बोलते हैं मतलब ऐसे इम्पॉसिबल बातें करना. Okay, Mr. Toad will die 1,000 times over if he could drive a motor car just once. इसका मतलब क्या है? The sentence means कि Mr. Toad 1000 बार मर सकते हैं वो कार चलाने के लिए. अगर वो एक बार मरेंगे तो वो दूसरी बार अलाइव होंगे क्या? No. So how can he die 1000 times? 1000 बार कैसे मर सकते हैं? So in the same way, this is known as hyperbole. Next example is the king's nose was 3 feet long. क्या है मतलब what is the sentence कि king की nose 3 feet लंबी है, ऐसा possible है क्या? No. That boy runs faster than the car. कोई boy कार से ज़्यादा स्पीड में भाग सकता? No, no one can run. He was so hungry he could eat a horse. मतलब वो इतना भूखा हो गया था कि वो उसने कंप्लीट हॉर्स खा लिया. बिकॉज एक हॉर्स खाना भी पॉसिबल नहीं है. सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले. आई विल स्लीप फॉर ईयर्स, मतलब मैं सालों ना साल सो सकती, लाइक ईयर्स टू 1 year 2 year हम सो सकते क्या? नो ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान इतने साल सो सकता क्या? नो. सो इट्स अ हाइपरबोले. ही इज एज लार्ज एज हाउस, कोई हाउस के जितना लंबा हो सकता? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज इट्स जस्ट अ इमेजिनेशन. मतलब ये सिर्फ हम सोच सकते हैं, ये रियलिटी नहीं हो सकती. लाइक सुपरमैन, बैटमैन,
जैसे कि ये फ्लाइंग जेट्स, ये जैसे एयर में उड़ते हैं, तो ये इमेजिनेशन है, ये सब एनिमेशन, ये रियलिटी में है क्या अवेलेबल? नो. सो इट इज नोन एज hyperbole. Okay, now next is your create. We have already we have already learned about prefix and suffix in a previous grade. Let us revise them quickly. Means हमने prefix और suffix पहले भी पढ़े, but हम आज इसको क्या करेंगे? Just revise करेंगे. अब what is a prefix? A prefix is a letter or a group of letters that is added at the beginning of a word to change its meaning. प्रीफिक्स का मतलब ये रहता है कि एक वर्ड है, एक लेटर है या लेटर के ग्रुप है, हम उसके आगे ऐड कर दे ताकि वो चेंज हो जाए, उसका मीनिंग चेंज हो जाए. लाइक द कार स्टूड इन द मिडल ऑफ द यार्ड क्वाइट अटेंडेड. अटेंडेड मतलब कि लाइक अटेंडेड मीन्स एकदम पॉसिबली, या मतलब ड्राइविंग फेज में, मतलब चालू हो जाएंगे, वो अपने आप चालू. अटेंडेड. अनअटेंडेड मतलब वो उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा. इट्स लाइक ओनली केप्ट इन द यार्ड. इट्स नोन एज प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मीन्स लेटर के आगे, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स के आगे कोई ऐसा वर्ड लगाना बिगनिंग में जो उसका मीनिंग चेंज कर देता है, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं. एंड सफिक्स, a suffix is a letter or a group of letters that is added at the end of a word to change its meaning. Prefix means before, suffix means after. Suffix का मतलब है कि हम word के बाद में उसको कोई और वर्ड्स लगा देते ताकि उसका मीनिंग चले. लाइक मैच, मैचलेस. आर्टफुल, आर्टफुलनेस. लेस मीन्स कम हो जाना, लेस मीन्स बढ़ जाना. Wake up and take over from us these wild toads, a criminal of the deepest guilt and matchless artfulness and resource. मतलब क्या बताएं कि ये बहुत मैचलेस, मतलब ये किसी से भी मैच नहीं हो सकता. एंड ही इज वेरी, इसमें कोई नॉलेज ही नहीं है. मतलब लाइक ही वांट टू डू द एडवेंचर्स, मतलब उनको एडवेंचर्स करना पसंद है, ये ध्यान ही रखते किसी चीज़ का. लाइक दिस इज द चेंज इन द वर्ड. ओके, so next is here the prefix is given, meanings are given, and prefixed word like anti, action, opposite, anticlimax, inner, inter, between. इंटर का मतलब जो हम बिटवीन में लगा सकते हैं, या इंटर रिलेटेड. नॉन इनिमिटी, मिड डे, प्रीफिक्स, पोस्ट मास्टर, मल्टी मिलियनर. ये मिलियनर मीन्स मिलियंस कमाने वाला. मल्टी मिलियनर्स मतलब और मिलियन से भी ज़्यादा, लाइक ही इज हैविंग लॉट ऑफ मनी, वेल्थ. मीन्स ये वर्ड्स को थोड़ा और एक्सैजरेट करता है. अकम्पलिशमेंट, अकोमोडेशन, population, TION, legal, teacher, laziness, childhood, friendship. These are the words used for prefix, and these are the words used for suffix. Okay, मोस्टली हम सफिक्स में क्या यूज करते हैं? एबल, नेस, फुल, ION. ओके, दिस आर द मेन रूल्स. जजमेंट इज इक्वल टू जज प्लस मेंट इज कॉल्ड जजमेंट. Publisher, published, or we can write publishness or interactiveness or interactively, ly. You can join this first. Multitasker, multitasking, multitask. These are the different words we can form with the help of suffix. Okay, so this part we will do in the next lecture, or you can do by your own. It's very simple. सिर्फ आपको पीछे ION, FUL and LY ऐसे words join करना. Okay, next is your homework. Read the chapter daily, learn and write the given exercise 3 times. You have to write the given exercise like A1 of your page number 5 in your textbook, plus
A2, there is question answers which is given to you. Then the A4, that is the hyperbola and its examples. And then the A5, that is the suffix and A5, no, it's B, suffix and prefix, page number 6. Learn and write meanings of complete chapter given in your textbook. आपको जो भी complete chapter है उसके meanings लिखना है. Like it's given on the every page number, like from page number 2, 3, 4, 5, ये पूरे पेज नंबर्स पे आपको मीनिंग्स दी गई है. आपको लर्न करना है, लिखना है question answers in A2, and you will write the examples of hyperbole. Okay, so today we will stop our lecture here. See you in the next lecture. Thank you.